Hello students, welcome all of you once again. Now today we are going to start our lesson chapter 4 material, metals and non-metal. So now we are continuing this lesson. There is one session is already completed. This is our next session. So chapter 4 material, metals and non-metal. Now let's discuss chemical properties of metals and non-metal. We already learned about physical properties of metals and non-metal. Now chemical properties of metals and non-metals. ठीक है, chemical properties of metals and non-metals. Okay, so chemical properties of metals and non-metal. You are familiar with the phenomenon of rusting of iron. You already know rusting of iron. Okay, you all are familiar with rusting of iron. लोहे में जंग लगना. So recall the reaction by which rust is formed. Okay, recall the reaction by which rust is formed. So you had also performed in class 6th an activity of burning magnesium ribbon in air. You have learned that in both process oxide formation take. Complete the following reaction of iron and magnesium. See this reaction: iron Fe plus oxygen O2. Okay, this is the symbol of iron. ये आयरन का सिंबल है Fe and oxygen O2. So plus water and the symbol of water is H2O. So what is the product form? Product क्या बनेगा? Recall this activity. Magnesium Mg, the symbol of magnesium is Mg, plus oxygen O2. So what is the symbol? What is the product? Here MgO is formed and here rust is formed. Means, so in this reaction let us perform an activity. एक एक्टिविटी को हम समझेंगे, परफॉर्म तो नहीं कर सकते. So nature of rust form as a result of the reaction between nature of rust. Means जो rust होती है उसका नेचर कैसा होता है? Is it acidic? क्या ये एसिडिक होती है? और is it बेसिक या फिर ये बेसिक होती है? सो आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर, व्हेन दिस ऑल रिएक्ट विथ आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर रिएक्ट विथ ईच अदर, देन द प्रोडक्ट इज फॉर्म इज रस्ट. ये तीनों आपस में रिएक्शन करके रस्ट बनाएंगे. इन द नेचर ऑफ द रस्ट, एसिडिक और बेसिक. करना क्या है? कलेक्ट ए स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिजोल्व इन ए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर. ओके, थोड़ी सी रस्ट लेना है, उसको पानी में डाल देना है, जंग को. You will find that the rust remains suspended in water. Shake the suspension well, उसको अच्छे से हिला लो. Test the solution with red and blue litmus paper. आपके बाद उसके बाद क्या करना है? Rust dissolve in water. Rust dissolved in water. Then
tested with then tested with blue or red and blue litmus paper, red and blue litmus paper. Okay, so rust dissolve in water and after that you have to test it with red and blue litmus paper. So what do you observe? आप क्या ऑब्जर्व करोगे? What do you observe? What do you observe? We already know and हमने पिछली क्लास में भी रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर आपको दिखाया था. What do you observe? Is the solution acidic or basic? ये जो सॉल्यूशन है, is it acidic और बेसिक? ये एसिडिक है या बेसिक है? सो इट इज बेसिक इन नेचर. इट इज बेसिक इन नेचर. बेसिक इन नेचर मीन्स रेड लिटमस पेपर, रेड litmus paper turn into blue litmus paper. मतलब लाल जो लिटमस पेपर है, मतलब आप रस्ट लोगे, उसको पानी में डाल दोगे, उसके बाद हम उसमें रेड लिटमस पेपर डुबा के देखेंगे. सो रेड लिटमस पेपर का जो कलर है वो लाल कलर से ब्लू कलर में चेंज होगा, विच इंडिकेट दैट द रस्ट इज बेसिक इन nature. The rust is basic in nature. Now let's perform some. Does copper also get rusted? Does copper also get rusted? Copper, तांबा. Does copper also get rusted? I have seen a greenish deposit on the surface of the copper. You have seen आपने देखा होगा एक ग्रीनिश डिपॉजिट on the surface of copper vessels. मतलब कॉपर में भी रस्टिंग होती है, एक ग्रीन डिपॉजिट हरे हरे कलर की उस पर लेयर बन जाती है. व्हेन ए कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, व्हेन कॉपर वेसल एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम, इट एक्वायर ए डल ग्रीन कोटिंग. व्हेन कॉपर वेसल्स exposed to moist air for long times, it acquire a dull green coating. हरे कलर की कोटिंग उस पर चढ़ जाएगी. द ग्रीन मटेरियल इज ए मिक्सचर ऑफ, जो ग्रीन मटेरियल होगा, ग्रीन मटेरियल इज कॉपर हाइड्रोक्साइड. The formula is CuOH2 and copper carbonate CuCO3. See this following reaction. The following reaction. See this following reaction. यह following reaction आप देखो. Suppose this is our copper, Cu plus this is water H2O, this is water H2O, CO2, this is carbon dioxide plus oxygen. ये सभी copper, water, carbon dioxide, oxygen, these all are react with each other and form a CuOH
plus CuCO3. See this. This is moist air. Moist air. Okay. Moist air मतलब कॉपर को आपने खुला छोड़ दिया तो कॉपर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब आपस में मिलकर रिएक्शन करके ये दोनों चीजें बनाएंगे. दिस इज कॉपर हाइड्रोक्साइड. कॉपर हाइड्रोक्साइड. कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज कॉपर कार्बोनेट. कॉपर कार्बोनेट. ओके. दिस इज कॉपर कार्बोनेट. मतलब ये जो आपको ये जो कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट है, वो जो ग्रीन कलर है वो इसका होता है और वो ग्रीन कलर ही रस्टिंग की तरह काम करता है. नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम. आपने पुरानी क्लास में देखा होगा एक मैग्नीशियम का रिबन आता है, उसको जला लेते हैं. मतलब किसी चीज को जलाने के बाद में उसका क्या बचता है? एश. मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम रिबन. ओके. सो मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करोगे. बर्न तो यहां पर बनेगी एश. राख. मतलब किसी भी चीज को जलाने पर उसकी एश बनती है, राख बचती है. सो मैग्नीशियम रिबन की जो राख बची है, एश, वो जो राख है एश, dissolve in water. Ash dissolved in water. उस राख को पानी में घोल दो. Ash dissolved in water and tested for and after that check with acidic or basic. And after that check it with acidic or basic. Means you have to check it with red or blue litmus paper. So ash formed is change the blue litmus paper, red litmus paper. ash जो राख है उसको पानी में डाला आपने. पानी में डिसोल्व करने के बाद में उसको हम रेड लिटमस पेपर उसमें डुबाएंगे तो रेड का कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में. सो ब्लू में चेंज होगा विच इंडिकेट दैट मैग्नीशियम. सो एश इज राख इज बेसिक इन नेचर. एश इज बेसिक इन नेचर. एश जो है उसका फॉर्मूला है मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड. Magnesium oxide. You must have observed that the red litmus turn blue. So oxides of magnesium is also basic in nature. So oxides of magnesium is also basic in nature. So oxides of magnesium is also basic in nature. So in general, तो हम अब एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूं मैं. in general metallic oxides are basic in nature. Metallic oxide are basic in nature. Metallic oxides are basic in nature. This is the most important points. You have to remember it. All the metallic oxides are generally basic in nature. Okay. So now let us discuss about non-metal. What is the nature of non-metallic oxide? Non-metal. So
सो व्हाट यू हैव टू डू, नॉन मेटल्स करना क्या है, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर, सी दिस एक्टिविटी, okay, see this activity. Take a small amount of powdered sulfur in spoon and heat it. If the deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it and give it to the shape. Okay, see this. As soon as sulfur start burning, आप सल्फर को जलाओगे. इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू अ गैस जार, ग्लास टम्बलर, कवर द टम्बलर विद लेड दैट इंश्योर दैट द गैस पाउडर डज नॉट एस्केप. रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम. एड a small quantity of water to the tumbler and quickly replace the lid. Shake the tumbler well. Check the solution with the red and blue litmus paper. So सल्फर पाउडर को जलाने के बाद में हम उसको जब चेक करेंगे, when you check it with red or litmus paper, सल्फर is burn. Sulfur powder burn and check with blue or red litmus paper. तो सल्फर पाउडर को जलाने पर रेड और ब्लू लिटमस पेपर से क्या होता है, तो ब्लू लिटमस पेपर चेंज इनटू रेड कलर, ओके, ब्लू लिटमस पेपर चेंज इनटू रेड कलर. सो इट इंडिकेट दैट the name of the product in the reaction to sulfur and oxygen is sulfur oxide. means सल्फर को जब आप बर्न करोगे, सल्फर इज ए नॉन मेटल. सल्फर प्लस ऑक्सीजन मीन्स सल्फर एक नॉन मेटल है. सल्फर इज अ नॉन मेटल. सो आप इसको बर्न करोगे तो यहां पर जो बनेगा प्रोडक्ट, बनने के बाद में बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस. सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी. सो व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूस सल्फ्यूरस एसिड. जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम पानी में डिसॉल्व करेंगे, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड बनी है इसका फॉर्मूला है SO2. सल्फर डाइऑक्साइड SO2 डिसॉल्व्ड इन वाटर. सल्फर डाइऑक्साइड को जब आप पानी में घोल दोगे उससे बनेगा सल्फ्यूरस एसिड. क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड. सो सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स, ये जो सल्फ्यूरस एसिड है, ये सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड लिटमस पेपर. मतलब उसका ब्लू का कलर चेंज हो जाएगा रेड में. ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड लिटमस पेपर. तो ब्लू का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा रेड लिटमस पेपर में, विच इंडिकेट दैट इट इज एसिडिक इन नेचर. which indicate that it is acidic in, जिससे ये पता चलेगा कि वो एसिडिक होता है नेचर में. सो जनरली नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट जनरली oxides of non-metals are acidic in nature. Generally, oxides
of non-metal are generally oxides of non-metal are acidic in nature. Acidic in nature. So this is the most important statement. Generally oxides of non-metal are acidic in nature. Some of the laboratory acids and bases you read in class. कुछ एसिड और बेस के बारे में सोचो जो आपने पहले पढ़े हैं. Note down their names in the table. Identify the metal or non-metal present in them which form oxides with oxygen. See this table. See this table. Here नेम ऑफ द बेस. ये जो लेबोरेटरी में मिलता है नेम ऑफ द बेस. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसमें कौन सी मेटल है? कैल्शियम. सपोज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इसमें कौन सी मेटल है? मैग्नीशियम. कौन सी मेटल इसमें? मैग्नीशियम. सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसमें कौन सी मेटल है? सोडियम. इसमें कौन सी मेटल है? सोडियम. सपोज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. इसमें कौन सी मेटल है? पोटेशियम. पोटेशियम. सो और भी बेसेस हैं. यू हैव टू रिमेंबर इट एंड आइडेंटिफाई वेदर इट इज एसिड और बेसेस. नाउ सी दिस सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड. इन सल्फ्यूरिक एसिड कौन सी नॉन मेटल प्रेजेंट है? सल्फर. इट इज ए नॉन मेटल विच इज प्रेजेंट. नाउ लेट्स सी सम मोर एसिड्स. कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड. इसमें कौन सी नॉन मेटल प्रेजेंट है? हियर कार्बन. कार्बन इज ए नॉन मेटल. नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड. दिस ऑल आर एसिड. इसमें कौन सी नॉन मेटल प्रेजेंट है? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन. ओके. थिंक अबाउट सम मोर. फास्फोरिक एसिड. फास्फोरिक एसिड. इसमें कौन सी नॉन मेटल प्रेजेंट है? फास्फोरस. फास्फोरस. ओके. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. Base has metal. In the base there is a metal present, and if it is non-metallic then non-metal is present. Suppose sulfuric acid, there is sulfur is present. Carbonic acid, carbon is a non-metal. Nitric acid, nitrogen is a non-metal. Phosphoric acid, phosphorus. Means base has metal and non-metal has base has metal and acid has non-metal. So you have to remember this. So there is important physical property we are discussed in this chapter. So first reaction is that reaction with ऑक्सीजन. तो हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज सीखी है. क्या सीखा है? व्हाट यू हैव लर्न टुडे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल इन दिस फर्स्ट रिएक्शन. रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. कहने का मतलब है कि जब आप मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन करवाओगे ऑक्सीजन से, तब क्या होता है? तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पर मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा. नॉन मेटल से रिएक्शन कराने पर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा. मेटेलिक ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर. सो प्लीज note down all the important things whatever you learn in this session, okay, and note down in your copy and please purchase your books. If you have books then it is easy for you to understand all the topics and make class notes. please okay, and recall और घर पे इसकी प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें. okay, so now
we are going to end of the today's session. Okay, bye, take care.